یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ مہیلائیں وہاں جا کر بھی آپ کی سیوا کریں، جنت میں صرف حوریں ہیں مطلب. دیکھیے جنت سے دقت مجھے ہے نمبر 1 اور سب کچھ پرشوں کے لیے ہے، مہیلاؤں کے لیے کچھ نہیں ہے. نہیں 72 حور سچ یا فطور. مسلم اسکالر ہیں لیکن ان کو میں دیکھتا اور سنتا رہتا ہوں. چرچا شروع کریں اس سے پہلے مجھے لگتا ہے 72 حورے کا کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھنا میرا سب سے زیادہ ضروری ہے. جی ہاں بالکل. وہ ٹاپک ہے 72 حور کا ٹاپک. مجھے بہت تعجب ہے کہ یہ ٹاپک اس طرح سے ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو آئیے ہم آج کے اسٹریم میں دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے، کیا اندر صحیح بات کیا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں بلون میں سے ہوا نکالنا چاہتا ہوں. جو بلون ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ آتنکواد جو لوگ کرتے ہیں آتنکوادیوں کو 72 حور ملے گی، تو ہم کہتے ہیں ثابت کرو اس بات کی گرافک ڈیٹیلز. یہ لوگ مسلمان بچے کو صرف اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے بھیڑ تنتر کی طرح استعمال کرنا چاتے ہیں. ملنے کی بات ہے. آتنکوادی کو حور ملنا تو دور کی بات. قرآن کی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ 28 آیت نمبر 83 میں اللہ نے فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے یعنی جنت ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں بڑپن نہیں چاہتے، نہ زمین میں فساد چاہتے. کہ آتنکوادی کو 72 حور ملے گی، اس بات کو ثابت کرو آپ. کوئی پروف نہیں ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو حور ملنے کا ذکر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ نیک لوگوں کے لیے ہے، جو نیکی کریں گے، ایمان کے ساتھ عمل کریں گے، اچھے کام کریں گے، جنت جائیں گے. ایسے لوگوں کو حور. گرافک ڈیٹیلز. یہ لوگ مسلمان بچے کو صرف اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے بھیڑ تنتر کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں. زمین میں فساد چاہتے ہیں. آتنکواد کیا ہے؟ فساد. جو فساد آتنکواد چاہتے ہیں ان کے لیے جنت ہے ہی نہیں. حور ملنا دور کی بات، ان کے لیے جنت ہی نہیں. آپ یہ دو حدیثیں دیکھیے صحیح بخاری کی اور سنن نسائی کی. پہلی حدیث میں آتا ہے من قتل معاہدن، جو ایک ایسے شخص کا قتل کرتا ہے جو معاہد ہے یعنی مسلمانوں کی جس کے ساتھ ٹریٹی ہے. اور اگلی حدیث میں آتا ہے من قتل رجلا من اہل ذمہ، جو ایک نان مسلم کو قتل کرتا ہے جو مسلم کنٹری میں رہتا ہے. یعنی کہ یہ دو کے اندر نان مسلمز کی بات ہو رہی ہے. میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو کیا دیا ہوا ہے؟ لم یرا رائحۃ الجنہ، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اور جنت کی خوشبو تو اس فاصلے سے ملتی ہے. تو یہاں پر وہ بلون کی میں سے ہوا نکل جاتی ہے. کون سا 72 حور سچ یا فطور؟ پہلے مجھے وہ سمجھا دیجئے، مجھے نہیں پتا ہے. امن پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جو آتنکوادی کو حور ملے گی، آتنکوادی کو 72 حور ملے گی، آتنکوادی کو جنت ہی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو ہی نہیں ملے گی. جنت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فساد پھیلانے والوں کے لیے، آتنکوادیوں کے لیے نہیں ہے. جنت کا گھر کس کے لیے؟ نیک لوگوں کے لیے. ایسی بات ہے قرآن کے اندر جو ایک جان کی قیمت بتائی گئی ہے سورہ مائدہ سورہ 5:32 میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک معصوم جان کا قتل کیا. تو آگے اس آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں، ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کا قتل کر دیا. تو یہ اصل بات یہی ہے. اصل بات یہی ہے. وہ لوگ آپسین کلچر کے بارے میں کیا ان کا سٹینڈ ہے؟ آپسین کلچر کے بارے میں آپ خود دیکھیے. یہ امریکہ کی ایک مثال ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کلچرل انفلوئنس دنیا بھر میں آج کیا چل رہی ہے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کلچرلی کس طرف سے انفلوئنسڈ ہے دنیا بھر کے اندر. تو میں آپ کو سامنے بات رکھ رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں پر ایک ڈسپیرٹی دکھ رہی ہے، مجھے ڈبل سٹینڈرڈ دکھ رہے ہیں. وہاں پہ حور کے بارے میں بات کرنے میں الگ لہجہ ہے، لیکن دنیا کے اندر وہی کلچر جو آج ویسٹرن کلچر جو ایک پریویلنٹ ہے اور آج انڈیا تک آ گیا ہے، وہ کلچر کے اندر کیا اینڈ ریزلٹس ہے ذرا دیکھیے آپ کے سامنے. یہ امریکن گورنمنٹ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC.gov کی رپورٹ ہے. اس کے اندر آتا ہے کہ امریکہ کے کتنے پرسنٹ لوگوں کے کتنے پارٹنرز ہوتے ہیں، کتنے پارٹنرز ہوتے ہیں. تو آپ اس کے اندر نیچے والا لاسٹ لائن دیکھیے، لاسٹ لائن. تو 28% مردوں کے 15 یا اس سے زیادہ پارٹنرز ہوتے ہیں. 15 سے زیادہ لائف پارٹنرز 28% مردوں کے اور 12% عورتوں کے، اور 10 to 14 پارٹنرز 12.5% مردوں کے. مطلب یہ آپ دیکھیے یہ کامن سی بات ہے کہ ایک شخص کے کئیوں کے ساتھ لائف ٹائم میں ریلیشن شپس ہوتے ہیں. 25 اور مور دیا، 15 اور مور دیا ہوا ہے. آپ خود امیجن کریے. یعنی وہ کلچر کو وہ لوگ غلط نہیں کہہ رہے جو آج ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، جو ساری ویب سائٹس کے ذریعے کلچر آ رہا ہے، یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے بھی، تو اس کو بھی وہ غلط بولو نا. جب یہاں پہ سوال اٹھاتے ہو تو آپ کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے اپنی چیز کے تعلق سے. لیکن آپ کو پتا ہے اسلام کے اندر جب حور کی بات کہی گئی ہے تو آپ دیکھو کہ حور کس کو ملے گی. ذرا یہ کنسیپٹ کو تو انڈرسٹینڈ کریے. سورہ 79 ورس 40-41 میں آتا ہے، اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا رہا، اپنے پالنہار کے سٹیٹس سے ڈرتا رہا. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. کس کے لیے ہے؟ جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا رہا، اپنے نفس کو، اپنے جان کو، اپنے سول کو خواہشات سے، بری خواہشات سے روکتا رہا. ایسے شخص کو جنت ملے گی. آپ خود دیکھو نا جنت کس کو ملنے والی ہے؟ جو یہ ساری برائیوں سے دور ہو. جنت جانے کے لیے آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہوگا؟ ایمان. سب سے پہلے تو سچی چیز گاڈ کے بارے میں صحیح بات بلیو کرنا ہوگا، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگا دن میں 5 بار، روزہ رکھنا ہوگا، فاسٹ کرنا ہوگا، یعنی کہ زکات دینا ہوگا، حج کرنا ہوگا، نیک کام کرنا ہوگا، نیکیوں کے اندر ساری برائیوں سے بچنا ہوگا. یہ سب چیزیں ہیں جو ایک انسان کے اندر ترازو ہوگا قیامت کے دن. ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی، ایک طرف گناہ ہوں گے. نیکی بھاری ہوگی تب جا کے جنت ملنے والی ہے. ایسے نہیں کہ جنت ریڈی میڈ مل رہی ہے اور حور ریڈی میڈ مل رہی ہے. بہت بڑا سٹرگل ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، سٹرگل. اور آپ کو پتا ہے کہ مردوں کے لیے نا ایک عام بات ہے کہ ایک ڈیفیکلٹ ایگزام وہ ہوتا ہے عام طور پہ مردوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رانگ چیزوں سے، رانگ خواہشات سے روکیں. آپ کو پتا ہے ایڈورٹائزمنٹ ورلڈ کس چیز پہ ورک کرتا ہے؟ کون سے رانگ اٹریکشن کو وہ لوگ یوز کرتے ہیں؟ کیا یہ ایک سیکرٹ ہے؟ کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ ایگزسٹ ہوتا ہے؟ پھر ایڈورٹائزمنٹ ورلڈ میں چاہے پین سے لے کے گاڑی تک کچھ بھی بیچ رہے ہیں تو اس کے اندر کیوں وہ عورتوں کو یوز کرتے ہیں؟ تو اسلام نے کیا سکھایا آپ کو معلوم ہے؟ سورہ 24 ورس 30 اللہ نے کہا
कुल लिल मोमिनीना, कह दो मोमिन मर्दों से, ईमान वाले मर्दों से, या गुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि वो अपनी नजरों को नीची रखें, व यहफज़ू फुरूजहम, और अपनी शर्मगाहों को की, अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करें, रॉन्ग चीज से हिफाजत करें अपने प्राइवेट पार्ट्स की। तो यह है इस्लाम ने सिखाया, पाकीज़गी सिखाया कि कोई भी औरत हो, किसी भी मजहब की क्यों ना हो, अपनी नजरों को नीची करो, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, सारी गलत चीजों से अपने आप को बचाओ। अब आप बताओ कि वर्ल्ड सेफर प्लेस होगी या नहीं होगी अगर हर आदमी अपने नफ्स के खिलाफ स्ट्रगल करे तो दुनिया बेहतर दुनिया होगी कि नहीं होगी? आप सोचो। देखो, यह है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट इंडिया की, कि एक साल के अंदर 33,658 रिपोर्टेड रेप केसेस। आप बताओ, ये इतने सारे जो बैड केसेस, एक दो केसेस नहीं है, बहुत सारे लोग ये परसेप्शन में होते हैं कि फलां केस को हाइप किया मीडिया ने, ये केस हुआ, वो एक केस नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूस चीज है, इतने सारे केसेस हो रहे हैं, हजारों केसेस हो रहे हैं, रिपोर्टेड, अनरिपोर्टेड तो कोई सोच भी नहीं सकता है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आप इंडिया में देखेंगे, अमेरिका की बात देखिए, ये होप नाम की एक RAINN होप रिपोर्ट है ये, और RAINN.org अमेरिकन एनजीओ है, उसने ये रिपोर्ट दिया है, आउट ऑफ एवरी 6 अमेरिकन वुमेन, हर 6 अमेरिकन औरतों में से एक का या तो रेप हो गया है या तो अटेम्प्ट हुआ है रेप लाइफ टाइम में। समझ सकते हो आप? कोई छोटा प्रॉब्लम है ये? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आउट ऑफ एवरी 6 एक की बात कर रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। और NPR की रिपोर्ट के अंदर आता है कि जो वुमेन जॉब्स में काम करती हैं, तो उनमें से 81% कह रही है कि उन्होंने किसी टाइप का सेक्सुअल हैरेसमेंट फील किया है। अब आप बताओ, अगर दुनिया के मर्दों को बताया जाए कि तुम्हें स्ट्रगल करना है अपने नफ्स के खिलाफ और तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, लास्ट में तुम जन्नत पहुंचो, तुम्हें वो चीज, बेहतरीन चीज अल्लाह ताला ने इंतजाम रखा है, मिलेगा आपको, एक रिवॉर्ड, एक मोटिवेशन है, और रियल मोटिवेशन है। क्यों? क्योंकि रियल इसलिए है क्योंकि कुरान रियल है, कुरान अल्लाह की किताब है, उसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रू मैसेंजर ऑफ अल्लाह, बहुत सारे प्रूफ्स हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि वोंट द वर्ल्ड बी अ बेटर प्लेस? अगर हर इंसान, हर मर्द अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ स्ट्रगल करे तो दुनिया बेहतर होगी नहीं होगी? ये सारे जो रिपोर्ट्स आती हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में अब बढ़ते जा रहा है, 50% औरतें कह रही है कि बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूअसली, व्हाट इज दिस? हाँ, मी टू इंडिया कैंपेन के अंदर आप देखिए कितनी सारी रिपोर्ट्स आ रही थी। और जो लोग ये कहते हैं, हम कहते हैं कि आखिर में व्हाट्स द लॉस फॉर यू? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह ताला उन्हें हूर देगा जो जन्नत जाएंगे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इन द वर्ल्ड इज ट्रबलिंग यू? अगर अल्लाह ताला ईमान वालों को जन्नत में हूर देगा, मर्दों को, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप बताइए ना इससे। मतलब ये तो बात ऐसी है जैसे इनको इतनी फिक्र हो रही है जैसे कि उनके सर पे गन रख करके कहा जाएगा लो तुम्हें हूर मिलेगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये वो लोगों के लिए है, जन्नत किसके लिए है? जो ईमान वाले हैं, जिनके पास फेथ है, जो मानते हैं कि सब इंसानों का एक ही पालनहार है, एक मालिक है, और उसी की इबादत करते हैं, जो मानते हैं सारे मैसेंजर्स को मानते हैं, आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, जो ईमान के साथ और गुड डीड्स के साथ जो जिंदगी गुजारते हैं, उनको जन्नत मिलने वाली है। आपको टेंशन क्या हो रहा है? आपके लिए है भी नहीं, आपके लिए वो हूर है भी नहीं। अगर आप ईमान नहीं है तो आपके पास, आपके लिए हूर नहीं है। हूर किसके लिए? वो जो लोग जो लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हाँ स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने रखा है। तो ये तो क्या बात है, आई डोंट नो क्या चीज का वो लोग रेस कर रहे हैं। भाई हर जगह पे एक होता है ना मोटिवेशन, एक मोटिवेशन होता है, यहां पे ये रियल मोटिवेशन है। और जो कहते हैं कि ऐसा क्या, ऐसा होगा, स्केप्टिसिज्म बताते हैं, हम कहते हैं कि इसके अंदर आप अगर जानना चाहते हो ना, आप कुरान पढ़ो। ये जन्नत और दोजख का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं चलेगा। आपके शहद और आपके अंगूर और आपकी दूध की नदियां क्यों नहीं? मैं सुबुई खान भारतीय मुसलमान हूं, मैं जन्नत नहीं जाना चाहती। जन्नत इज नॉट अ प्लेस वेयर आई वांट टू गो। मैं जन्नत प्रूफ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे मैसेंजर थे, बहुत सारे प्रूफ है। उन्होंने हमें बताया कि मरने के बाद जिंदगी है, उसमें हिसाब है, और जिसके पास नेकियां ज्यादा है वो जन्नत जाएगा, जिसके पास नेकियों में ईमान नहीं है, अमल नहीं है, वो जहन्नम जाएंगे। उन्होंने हमें रियलिटी बताई। अब आप सोचो, दुनिया के अंदर आप देख सकते हो, एक तरफ हरियाली, अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी है, और एक तरफ सहारा डेजर्ट भी है। आप देख रहे हो ना, ये दुनिया की बात कर रहे हैं। दुनिया में जब इतना बड़ा वेरिएशन आ सकता है, तो आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि जिस मालिक ने इस दुनिया को बनाया, उसने एक ऐसी जगह बनाई है जिसका नाम है जन्नत, जहां पे रियल खुशियां हैं। दुनिया में इंट्रोडक्शन है, दुनिया के फल इंट्रोडक्शन है जन्नत के फलों का। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जो एक बीवी रखी है एक शख्स के लिए, जिससे वो शादी करता है, उसको पता है कि किसे कहते हैं, एक इंट्रोडक्शन है। आप इमेजिन नहीं कर सकते अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत हूर रखी है नेक काम करने वालों के लिए। तो मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने रखा है। हाँ, और मैं आपको एक मिसाल से बताता हूं कि आप ये देखिए, आर्टिकल इसके अंदर आया है कि ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसमें डायमंड्स की बारिश होती है। डायमंड्स की बारिश, कैन यू बिलीव इट? डायमंड्स की बारिश होती है। यहाँ पे डायमंड के लिए लोग कितना मरते हैं, हाँ हीरो के लिए कितना मरते हैं, लेकिन वहां पे डायमंड्स की बारिश होती है। तो है ऐसे प्लैनेट्स, प्रूवन है साइंटिफिकली। आप इस बात को देख लो तो आपको ये समझने में क्या मुश्किल है कि ऐसी जन्नत भी है जिसमें अल्लाह ने सोने और चांदी की ईंट से तैयार कर रखा है, और उसके अंदर सारी नेमतें हैं। अब आइए एक और चीज से आते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक और प्रॉब्लम ये है कि औरतों का कहना है कि हमें क्या मिलेगा, और ये औरतों का असल में जो सवाल है वो उनका फितरी नहीं होता है, ये एक ऑब्जेक्शन के तौर पर होता है। ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा ही मैं नहीं चाहता हमारी सिस्टर्स के लिए कि जन्नत में कोई भी सिंगल नहीं होगा, कोई भी सिंगल नहीं होगा। वमा फिल जन्नती आज़बू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में कोई भी शख्स सिंगल नहीं होगा, सबके पास कंपेनियन होंगे। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतahhara, कि उनके पास प्यूरिफाइड स्पाउसेस होंगे। और क्योंकि मर्दों के लिए बताया गया है और जरूरी था ताकि वो मोटिवेट हो, और गलत बेहयाई की जो दुनिया है, एडवर्टाइजमेंट्स, बेहयाई हर जगह से बम्बार्ड किया जा रहा है, वो डरे अल्लाह ताला से, अपनी नजरों की हिफाजत करे, अपने आप की हिफाजत करे, बचा बचा के अपने आप को नेक रास्ते पे चलाकर जिंदगी उस पे गुजार ले। औरतों के लिए द वर्ल्ड विल बी अ मच बेटर प्लेस। लेकिन औरतों के लिए बात हम कह रहे हैं कि हर चीज जन्नत की डिस्क्राइब नहीं की गई है। ये बात पता है कि अल्लाह ताला किसी को सिंगल नहीं रखेगा, और अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतें तैयार कर रखी है, ऐसी नेमतें जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, ना दिल में ख्याल आया। ये बात को याद रखिए। अब इसमें मिसाल कुरान में से बता रहा हूं, सूरह 42 वर्स 40, अल्लाह ने फरमाया फमन अफा व असलहा फअजरुहु अलल्लाह, जो माफ करे और दरगुजर करे उसका अजर तो अल्लाह की तरफ से मिलेगा। हाँ, उसका अजर तो अल्लाह की तरफ से मिलेगा। मतलब अल्लाह ने उसका अजर डिस्क्राइब नहीं किया है, अल्लाह ने कहा मैं दूंगा उसका अजर।
मतलब उसमें सुकूत है, खामोशी है। तो अब जब किसी चीज में नहीं डिस्क्राइब है तो औरतों को कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जन्नत के बारे में 100% डिस्क्रिप्शन नहीं है। क्या आता है हदीस में, माला आइनुन रात वला उजुनुन समियत वला खतरा अला कल्बी बशरिन, ये जो आंखों ने नहीं देखा, दिल ने नहीं सुना और इंसान के दिल में ख्याल भी नहीं आया, मतलब अल्लाह ताला ने ये बात बताई। तो हम ये कहते हैं अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। लहुम मा यशाऊन फीहा व लदैना मजीद, उन्हें वहां जो वो चाहेंगे मिलेगा, अल्लाह की तरफ से और मिलेगा। मतलब औरतों को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा कि हमें कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं मिलेगा। उनको सब कुछ मिलने वाला है, सारे इंसानों को सब कुछ मिलेगा, जो वो दिल से चाहेंगे, जो चाहेंगे सब मिलेगा और अल्लाह की तरफ से और मिलेगा। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि फवलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, कि वहां पर तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारे नफ्स चाहेंगे, वलकुम फीहा मा तदऊन, और वहां पे वो जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हाँ, तो मांगोगे मिलेगा। और एक बात पक्की है कि जो हूर्स की ब्यूटी है, तो जन्नत की औरतों की ब्यूटी क्या होगी वो इमेजिन नहीं कर सकती हैं वो, जो अल्लाह ताला उनको खूबसूरत बनाया, क्योंकि ये तो वो औरतें हैं जो दुनिया में स्ट्रगल करके पास होकर जन्नत तक पहुंची है। क्या उनके लिए जन्नत से हूरों से ऊंचा मकाम नहीं होगा? उनका मकाम डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलो अन्ना इम्राअतन मिन निसाई अहलिल जन्नह, अगर जन्नत की औरतों में से कोई औरत इत्तलात इलल अर्द, जमीन की तरफ देख ले, ला अदात मा बैनहुमा, जो उन दोनों के दरमियान में जो पूरी जो जगह है वो पूरी तरह से रोशन हो जाती। अगर जन्नत की एक औरत दुनिया की तरफ देख ले, पूरी जगह रोशन हो जाती है, इतनी उसकी खूबसूरती है। वला मलात मा बैनहुमा रीहन, पूरी की पूरी जगह खुशबू से भर जाती। वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया वला फीहा, उसके सर का एक जो दुपट्टे का जो एक टुकड़ा, एक हिस्सा भी छोटा, पूरी दुनिया में जो कुछ है उससे फार बेटर है। देखो ये बात को आप अंडरस्टैंड करो, दिस इज युमिनूना बिल गैब, गैब पे ईमान। अगर आपको नहीं पता है ना तो आप कुरान स्टडी करो, वो जगह है, वहां से स्टार्ट करो। हूर के टॉपिक पे डिस्कस करके आपको जवाब मिलने वाला भी नहीं है। आप कुरान से स्टार्ट करो, हदीस से स्टार्ट करो, इस्लाम जो रिलीजन ऑफ ट्रूथ है, मेरी एक सीरीज चल रही है वाई इस्लाम 100 रीजंस, वो देखो। और इस बारे में जो ये कहते हैं कि औरतों को हर्ट होगा जेलसी की वजह से, हसद की वजह से, तो हम देखते हैं कि जन्नत में कोई हर्ट नहीं होने वाला है। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, हम उनके सीनों में से जो भी तकलीफ है जन्नत में डालने से पहले, जो भी तकलीफ है सीनों में, अल्लाह ताला वो तकलीफ को निकाल देंगे, खत्म कर देंगे। वो तख्तों पे एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे, दिल में कोई बुग्ज, बुराई, हसद, हेट्रेड, नफरत, ये सब नहीं होने वाला है वहां पे। जन्नत एक अलग डिमेंशन है। हम उसके बारे में यहां से बैठकर सारी हम जो बातें बताई गई वो बता सकते हैं, लेकिन हम बातें नहीं कर सकते जनरल तौर पर। कोई वहां पे तकलीफ की बात नहीं होने वाली। ला यस्माऊना फीहा लगवन वला ताफीमा, वहां पे कोई लघु बात, कोई बुरी बात, ना कोई गुनाह की बात होने वाली है। इल्ला कीलन सलामन सलामा, वहां पे बात होगी सलामती सलामती, ये बात होने वाली है। तो एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि बाज लोग ऐसा बताते हैं ना, जैसे कि मुस्लिम्स के स्क्रिप्चर में हूर ये बताया हुआ है। कभी पढ़ा भी है आपने कुरान, कभी पढ़ा भी है कुरान में, आप देखोगे तो जन्नत के बारे में 77 जगहों पे वर्ड जन्नत के साथ आता है। जन्नत 67 जगहों पे आता है। जन्नत के बारे में आता है, बहुत कॉमन फ्रेज आता है, जन्नत इन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, बागात जिसके नीचे से नहरें बहती है। 27 जगह पे आता है। लेकिन हूर वर्ड कितनी जगह पे आता है कुरान में? 4। तो जो ये लोग कहते हैं ना, जैसे सब जगह से हूर का डिस्क्रिप्शन चल रहा है, तो जन्नत के अंदर आपको पता है जो उसके कारपेट है ना, जन्नत के अंदर जो वहां बैठने के जो कुशन्स है ना, तख्त है ना, जन्नत के अंदर जो पीने के कप्स है ना, वो सब का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। और हूर का जिक्र 4 बार मिलता है। तो आप जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं ना, जैसे कि जन्नत में हूर, बस और कोई टॉपिक ही नहीं है। ये जो है ना, ये ओवर एग्जैजरेशन है। और मैंने बातें आपके सामने रखी। और लास्ट में बात ये है कि आपको हम सबको ईमान, रियल फेथ, उस पर वर्क करना चाहिए। और असल प्रॉब्लम मुझे ये दिख रहा है ना, लोगों को स्ट्रगल नहीं करना है अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ। जो स्ट्रगल करने कहा गया है उनको यहाँ पे अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से जीना, ये उनकी जन्नत है। ये जन्नत है, यहाँ पे दुनिया सब कुछ है उनके लिए। और जो असल जन्नत है ना, जो तैयार है, उस चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना, ये है असल प्रॉब्लम। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक क्लैरिफिकेशन रहा होगा इस मौजू पर।